Hello students, welcome to this video. This is the last topic of the polynomial chapter class 10, that is cubic polynomial. Okay, last video in which we discussed about the exercise 2.3 completely, and but later on this cubic polynomial can be asked in some times. So we'll discuss totally today about the cubic polynomial. Okay. So firstly, if we see the quadratic polynomial ax square plus bx plus c equal to 0, this is the general form of which this is quadratic. This is quadratic polynomial, but in cubic polynomial degree should be 3, है ना? But here in the quadratic polynomial degree maximum power of the variable should be 2, so degree is 2. So 2 degree, if degree is 2, then the polynomial is called quadratic, and if degree is 3, if degree of the polynomial will be 3, that is, I think it should be like that: ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. So it can be observed that there can be 4 terms in the cubic polynomial: 1 of power 3, 1 of 2, and 1 of 1 power, and 1 of constant term. Okay, maximum terms in the cubic polynomial will be 4. Okay, here in the quadratic case the maximum terms will be 3. Okay, x square term, x term, and constant term. But here the terms will be 4: x cube, term of x cube, term of x square, term of x, and then constant term. Okay, so there is a difference between the quadratic and cubic, that is the degree, mainly the degree. Okay, this is the general form of quadratic polynomial, this is the general form of cubic polynomial. Okay, so there ABC, what are ABC? ABC are real numbers. Okay, these are real numbers. Here A, B, C, D are again real numbers. Here A does not equal to 0, and here A does not equal to 0. Okay, A 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, जिससे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा. इसीलिए यहाँ पे भी अगर a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म छुप जाएगी, तो ये फिर क्वाड्रेटिक ही रहेगा, क्यूबिक तो रहेगा ही नहीं. तो इसीलिए हम x क्यूब का जो कोफिशिएंट है दैट शुड नॉट इक्वल टू 0. ओके, सो फर्स्टली द जनरल फॉर्म, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ द cubic polynomial, that is this one. This is the general form of cubic equation. But here if it is does not equal to 0, if it is does not equal to 0, this is quadratic equation. But here it is a quadratic polynomial, this is a cubic polynomial. Okay, now we discussed about whenever in the quadratic polynomial, जब हमने quadratic polynomial में डिस्कस किया था, there can be maximum number of zeros. maximum number of zeros कितने होते थे बेटा? maximum number of zeros 2, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, और उन जीरोस को हम यहाँ पे क्या बोलते थे? अल्फा एंड बीटा. ठीक है, क्या बोलते थे? अल्फा एंड बीटा. 2 जीरोस निकलते थे. अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इसके, वो कितने होंगे बेटा? इज इक्वल टू 3 होंगे. क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है बेटा? 3 है. जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, लेकिन एट मोस्ट डिग्री के इक्वल होंगे, डिग्री से ऊपर नहीं होंगे. क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास जो 3 जीरोस होंगे, उन 3 जीरोस को हम क्या नेम देंगे? अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, अल्फा एंड बीटा तो आपने यूज किया है, लेकिन एक और चीज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, गामा. क्या यूज कर रहे हैं? गामा. ठीक है, ये तो बीटा यूज कर ही रहे थे हम, इसको अल्फा. ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा, these are the Greek letters.
सो वी कैन यूज हियर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरोस होंगे इसलिए इनको अल्फा एंड बीटा लेते थे, यहाँ पे 3 जीरोस हो जाएंगे इसलिए अल्फा बीटा एंड गामा लेंगे। ठीक है, तो ये तो जनरल फॉर्म थी और नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस क्वाड्रेटिक में 2 थे या 3 होंगे। ठीक है, अब बात आती है रिलेशनशिप की, इनके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में स्टडी कर दिया था कि भाई जो रिलेशनशिप होते हैं यहाँ पे 2 रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस। ठीक है, हमने 2 रिलेशन पढ़े थे। पहला तो पढ़ा था सम ऑफ जीरोस। क्या पढ़ा था बेटा? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये पढ़ा था पहला रिलेशन। और यहाँ पे सेकंड पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था, यानी 2 अगर जीरोस अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस हैं तो एक बार हम सम कर देंगे और एक बार हम प्रोडक्ट कर देंगे यानी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो वो किसके इक्वल आता है? सी बाई ए। तो ये 2 रिलेशंस हमने क्वाड्रेटिक में पढ़े भी थे और वेरीफाई भी किए थे। ठीक है, सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ऐसे ही रिलेशन होते हैं, लेकिन जितने डिग्री होती हैं बेटा उतने रिलेशन हो जाते हैं। यहाँ पे 2 डिग्री थी, 2 जीरोस थे, इसीलिए 2 रिलेशन। यहाँ पे 3 डिग्री है, 3 जीरोस हैं, तो 3 रिलेशन बनने वाले हैं। तो देखिए, लेट अस सी व्हाट आर द रिलेशंस हियर इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप एक्चुअली दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो रिलेशंस आर नंबर फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो अपने पास कितनी जीरोस होती है बेटा? 3 जीरोस होंगी यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ ऑल जीरोस लेंगे, दैट इज अगेन माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, सम ऑफ जीरो हमेशा माइनस बी बाई ए। सेकेंड, यहाँ पे एक और रिलेशन यूज हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? सम तो लेना है, लेकिन किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन एट ए टू एट ए टाइम। 2 जीरोस एक बार लेके प्रोडक्ट लेना है। जैसे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट ले लिया, फिर बीटा और गामा का प्रोडक्ट ले लिया, फिर गामा और अल्फा का प्रोडक्ट ले लिया। तो इन सब का क्या लेना है? सम। सम सम किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, एक टाइम में 2 लेके जीरोस का प्रोडक्ट और उनका लास्ट में क्या कर देना? सम। तो दैट इज इक्वल टू क्या? सी बाई ए। ठीक है, ये सेकेंड रिलेशन अपने पास आ गया। ठीक है, एंड वन मोर रिलेशन, थर्ड रिलेशन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा एंड गामा। 3 जीरोस होती हैं तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पहले D, फिर C, फिर आएगा D, तो माइनस D बाई ए। देखिए, इसमें आपको कोई ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले आता है A, फिर B, फिर C, फिर D, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, B हमेशा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अगर E होता तो पॉजिटिव होता है। तो हमेशा यह ध्यान रखें, जब जब आपको पहला लेना है तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे चलेगा। तो आपके पास जहाँ जहाँ आप A लिख रहे हो, A हमेशा पॉजिटिव लिख रहे हो, तो A सबके नीचे लिखना है आपको। पहले दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस, ने अगला वाला डिवाइडेड बाई A होगा सबके। लेकिन डिपेंड करेगा साइन किस पे? ठीक है, A का साइन प्लस है, जहाँ जहाँ B लिखेंगे तो B माइनस के साथ लिखना है, फिर जहाँ C लिखेंगे तो प्लस के साथ आएगा, फिर C के आगे D आएगा तो D किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, बस ये सोचना है आपको। तो यहाँ पे आपके पास कितने रिलेशन हो गए बेटा? 3 हो गए। यहाँ पे आपके पास कितने थे? 2 रिलेशन थे, इनको हमने वेरीफाई कर लिया था। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में ही बात करनी है
ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें ये तीनों रिलेशन वेरीफाई हो जाए और इसके जो जीरोज होते हैं, ठीक है, वो जीरोज हमें वेरीफाई करने के लिए पूछा है। यहाँ पे हमें जीरो फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा पॉलिनोमियल्स में, क्यूबिक में, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, तो कुछ 2 टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं मेनली। तो वो 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताता हूँ क्या है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में, और ये 2 टाइप के ही क्वेश्चन इसमें जनरली बनते हैं। आप देखिए, एक तो ऐसा दिया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होता है और साइड में ऐसे 3 नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो 3 नंबर है अलोंग द साइड जो लिखे गए पॉलिनोमियल के, क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं, ठीक है। आपको चेक करना है, ठीक है। वेरीफाई यानी आपको प्रूव करना है। चेक वेरीफाई मतलब ये 1/2 1 और -2 इसके जीरोज हैं, आपको दिखाना है करके, ठीक है। कैसे इसके जीरोज है वेरीफाई करना है। दीज नंबर अलोंग द साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है इसके साइड में जो लिखे गए हैं वो उसके जीरोज हैं, आपको पहले चेक करना है। और अगर जीरोज आ गए फिर उसके बाद आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस, ठीक है। आपको रिलेशन जो अभी मैंने 3 रिलेशन बताए थे वो 3 रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं बाद में, ठीक है। लेकिन पहले आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे इनको? 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई तो ये इसके 0 होगा या नहीं होगा, है ना, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, लेट अस सी। पहले हम इस पूरे फर्स्ट पार्ट को ही क्या मान लेते हैं, इस पॉलिनोमियल को, ठीक है, इसको हम p ऑफ x ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो जीरोस हैं ये इन तीनों, तो 1 बाई 1 हम नंबर्स लेंगे। फर्स्टली नंबर है 1/2, तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है, ठीक है। जहां जहां x है वहां क्या पुट करना है, 1/2, ठीक है। देखिए x की जगह 1/2 उसका क्यूब, फिर 1/2 स्क्वायर -5 × 1/2 + 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/2 को x की जगह सब्स्टिट्यूट करना और अब वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगर 0 आएगा तो ही इसका ये 0 बनेगा, ठीक है। देखते हैं 1/2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो -5 1 जा -5 और नीचे हो गया 2 + 2, लेट अस सी, ये कट गया 2 4 जा, तो 1/4 + 1/4 -5/2 + 2। तो हम क्या कर लेते हैं, अब सबका एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ गया 1 + 1 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 2 5 जा 10, ठीक है। और ये 4 2 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 4 1 से डिवाइड करेंगे 4 4 2 जा 8। ये देखिए ये हो गया 2 और 2 + 8 10 - 10 / 4 दैट इज 0 / 4 = 0। तो अब देखिए 0 आ गया ना, तो आपके पास p ऑफ 1/2 कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, p ऑफ 1 चेक करना है, ठीक है। जैसे 1/2 को चेक किया आपने, वैसे ही अब नेक्स्ट नंबर है 1/1, ठीक है। तो करिए 2 1 क्यूब + 1 स्क्वायर -5 × 1 + 2। तो देखिए ये तो 2 1 का क्यूब 1 होता है, 1 × 2 2 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 5 1 जा 5 + 2। तो देखिए 2 + 1 3 3 + 2 5 और 5 - 5 कितना होता है, 0 होता है। तो p ऑफ 1 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया ना, ये भी 0। अब आल्सो लास्ट वन p ऑफ -2, p ऑफ -2 जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आपको क्या भरना है, अब -2 भरना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करिए, तो 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 2, ठीक है। जहाँ जहाँ x था x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया -2, ठीक है। वेरिएबल की जगह पे हमने -2 पुट करना है।
तो अब देखिए -2 का क्यूब क्या होता है, 2 टू जा 4 टू जा 8, माइनस का ही 8 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो -2 -2 -2 3 बार आएगा तो माइनस रहेगा, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, -2 मल्टीप्लाई -2, 2 टू जा 4 और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही रहता है, तो और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 टू जा 10 और प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 16, 8 टू जा 16 माइनस का, और ये प्लस का 16 हो गया, देखिए 10 प्लस 40 प्लस 2 क्या हो गया 16, 16 माइनस 16 0, तो P ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो इसका मतलब ये जो 3 नंबर हैं ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। देयरफॉर 1/2, 1 एंड -2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल P ऑफ x, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट फर्स्ट हो गया, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमें चेक करना था, वेरीफाई करना था इसकी जीरोस हैं, तो हमने वेरीफाई कर लिया, ये तीनों में 0 आ रहा है, तो इसीलिए ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, इसके जीरोस हो गए, ठीक है। अब आपको इसका जो सेकंड पार्ट है वो करना है एनी रिलेशनशिप, वेरीफाई रिलेशनशिप। तो देखते हैं अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, ठीक है। आपके पास ये वाला जो पॉलिनोमियल है उसमें आपको सबसे पहले क्या लिखते हैं, ABCD। रिलेशनशिप का हम क्वेश्चन करते हैं तो ABCD की वैल्यू लिखते हैं। A कितना है बेटा 2, B कितना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, C कितना है -5 और D इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अल्फा 3 जीरोस ये हैं, 1 2 3, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तो अल्फा हो गया 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनशिप। नाउ फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ये फर्स्ट रिलेशन है। तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का माइनस, b की वैल्यू क्या है बेटा, b की वैल्यू यहाँ देखिए 1 है, तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू 2 पुट कर दिया, यस। अब देखते हैं ये 1/2 और ये कितना हो गया -1, 1 - 2 क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1/2, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, -1/2, तो यहाँ पे भी आ गया -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ये देखिए LHS इक्वल टू RHS, ये रिलेशन वेरीफाई हो गया, यानी ये जो 3 जीरोस आई इनका भी सम वही है, और जो -b/a की वैल्यू है वो भी 1/2 माइनस का आ रहा है, ये भी 1/2 माइनस का आ रहा है, तो दोनों चीज सेम हो गई, तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सिमिलरली सेकंड रिलेशन ले लेते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a, ठीक है, सेकंड रिलेशन। तो देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 इंटू बीटा 1, फिर बीटा 1 गामा -2, ठीक है, प्लस गामा -2 इंटू अल्फा 1/2 इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ c -5, तो -5 डिवाइडेड बाई a दैट इज 2, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है, तो 1/2 का 1/2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया, 1 2 जा 2 माइनस का, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1 रहेगा, ठीक है, और इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 और ये हो जाएगा -3, -2 -1 -3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम ले लिए 2, तो 2 2 1 1 1 जा 1 -3 2 जा 6, तो 5/2, ये आ गया माइनस का 5/2 और यहाँ पे भी आ गया माइनस का 5/2,
तो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर? आ गया? इसी तरह से आप थर्ड वाला भी कर सकते हैं, दैट इज अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, तीसरा रिलेशन क्या था? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अल्फा क्या है? अल्फा ये इन तीनों का प्रोडक्ट करना है आपको, मल्टीप्लाई। तो 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू डी कितना है? 2 है, तो माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 तो कट गया, 1 आ जाएगा, इधर 2 से ये 2 कट गया, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट में है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिनोमिनेटर है, ये ऊपर है, तो ये 2 से 2 कट गया और 1 बन गया 1 और माइनस साइन का -1 रहेगा, और इस साइड में क्या आ गया? -1 ही बचा, 2 जाओ कट गया, तो -1 इज इक्वल टू -1। तो हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें यही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। पहले जो इधर नंबर दिए होते हैं इनको जीरोस शो करो इसकी, तो जीरो शो करने के लिए इनको हम x की जगह पर चेक करते हैं और सारे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो 0 आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये जीरोस होगी, तो उसके बाद ये अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे, और उसके बाद ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है आपको। तो ये अल्फा बीटा गामा और ए बी सी डी की वैल्यू है, यहाँ से पॉलिनोमियल से आपको मिल जाएगी, और ये इसके बाद 1 बाई 1 आपको तीनों रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था, वैसे ही हम फॉर्मेशन इसकी भी करेंगे जब अपने पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा तो। ठीक है, उस केसेस में। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया है, उस क्वेश्चन नंबर 1 जैसा एक सेम एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी का आपको एग्जाम्पल नंबर 5 मिल जाएगा, और उसको आपको करना है। ठीक है, सेम टू सेम डिटो वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ, जो अलग से क्वेश्चन है, मतलब आपको पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है यहाँ। आपको क्या करना है? फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। जहां पे आपके पास क्या क्या दिया है, देखिए सम ऑफ जीरो गिवन है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन एट ए 2 टाइम ये गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आपके पास गिवन है, ये 2 -7 और -14, ये क्या क्या गिवन है। दिस माइनस दिस 2 इज द व्हाट? सम ऑफ जीरोस। ये चीज क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम, और ये क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके पास गिवन है। यानी कहने का मतलब आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या है बेटा? 2 है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरी चीज़ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम, 2 एक साथ लेनी है आपको। ठीक है, गामा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इन दोनों का जो सम जो है वो कितना है? -7। ठीक है, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? -14। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये 3 चीजें आपके पास दे रखी है बेटा, तो आपको क्या निकालना है? क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो आपको सिंपल काम बता देता हूँ, रिक्वायर्ड ऐसा लिखना है आपको, एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट, जहां पे आपके पास अल्फा बीटा गामा का क्या है? सम है, मतलब सम। ठीक है, ये वाला सम, और सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम,
और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लास्ट कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। दैट इज आपके पास क्या आंसर आएगा, देखिए ये वाली जो चीज़ है वो अल्फा बीटा प्लस गामा कितना दिया है, देखिए 2 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2x², ठीक है। अब आगे प्लस ये वाली जो चीज़ है ये पूरी कितनी दी है, देखिए -7, ये देखिए -7x, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह हमने -7 भर दिया और इसकी जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -14, ठीक है। ये हो गया -14, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनता है, x² -2x² माइनस प्लस माइनस का 7x और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस का 14। तो ये आपके पास क्या बन गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको यही फॉर्म करना था, बहुत इजी है। आपके पास ये 3 रिलेशन मतलब ये दिए होंगे, आपके पास इनकी वैल्यू दे रखी होगी, ये वाली जो चीज़ें रिस्पेक्टिवली वैल्यू है वो इसकी थी। तो आपको जस्ट एक ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। यानी x² माइनस ये इन तीनों का जो सम आएगा, सम ऑफ जीरोस इंटू x² प्लस ये दूसरा वाला रिलेशन, इसकी जो वैल्यू होगी वो उसके साथ x मल्टीप्लाई करना है और माइनस इंटू अल्फा बीटा गामा, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा वो, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये 3 जो रिलेशन है उन्हीं का ही यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो डायरेक्ट वैल्यू भरनी है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी ऐसा किया था ना हमने, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमने डायरेक्ट किया था। तो उस टाइम तो क्या 2 ही रिलेशन होते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लेकिन यहाँ पे 3 रिलेशन है तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास टर्म भी 3 बनेगी आगे, एक तो x² बनेगी, उसके अलावा 3 टर्म्स बनेंगी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला जो हमने शॉर्टकट यहाँ लगाया था वही क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास 3 रिलेशंस यूज होते हैं। क्लियर। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन जो जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपसे पूछते हैं। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है यहाँ पे लगभग ये खत्म हो गया। मैंने आपको सारी चीज़ें इसकी ब्रीफिंग बता दी है, ठीक है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बताए, आप उनको 3 टाइम्स एटलीस्ट करना ही है आपको, जिससे इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस आपको हो जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 5 करना ना भूलें एनसीईआरटी का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। So thank you for watching this video and we will meet in the next video with the new chapter, that is linear equations. Okay, thank you.